where I have used the like vivid vocabularies in my sample argumentative essays. ठीक है? And in this way you will be able to come to know a lot of things and a lot of technicalities, especially okay, what sort of vocabularies actually Cambridge is looking forward, what sort of vocabularies actually you are having and you are possessing in your mind, and what sort of vocabulary is actually required by you, no matter you are fighting for the IGCSE, no matter you are looking forward for the O levels, right? तो इसमें सारा खेल जो है ज़्यादातर vocabs का होता है, but obviously vocabulary is not only the matter here. Obviously यहाँ पर like grammar also matters, and your sentence selection capability also matters a lot. That means you need to select very good and like you can say refined sort of academic sentences. ठीक है? So let's move on to that first. मैं इसको share भी कर रहा हूँ screen को, so that you can even see कि where I am speaking and what I am speaking. Wait, let the screen be shared. Hopefully it is shared right now. ठीक है जी. Now students, this is it. This is a sample essay that I gave you. It is an argumentative essay questions, okay? And the topic of this argumentative essay is, should governments impose a ban? It is a recent thing. Last time we had been talking, I mean we had already faced this few weeks ago, maybe few months ago during your holidays, that most of the malls you had been visiting, they might be telling you that, they might have been telling you that the plastic bags have been banned and now we are no more giving you the plastic bags. Okay, in Punjab it is already like going on, and it is like going on very enthusiastically, right? But in Lahore, in Islamabad, the people are following this rule a lot. But those people who have been in Karachi, so they also have faced such things, right? Especially in the malls, कि भाई उसमें 10 रुपए और 20 रुपए ज़्यादा ले रहे होते हैं वो लोग, 30 रुपीस भी कभी कभार ले रहे होते हैं for extra special bags which is not made up of plastics. ठीक है? तो भाई यहाँ पे उसी तरह का टॉपिक को एक आर्गुमेंटेटिव एसेज में लाइक मैंने इसको कन्वर्ट किया, और ये जो टॉपिक है समटाइम्स हम में से भी, मी एंड यू, some of us may not agree with this कि yes plastic bags should be banned, or some of us may agree with this कि yes it is right, it should be banned at all, right? So the topic is, the government impose like a ban on a single use plastic in order to protect the environment. Simply they are talking about the plastic bags. Discuss both the sides and give your opinions here, right? So I have discussed some vivid vocabularies. You can easily check them out later, okay, because the file is already in front of you. Here the sample essay, let me explain few part of it, okay, and then you have to take care of the rest. टाइटल क्या है हमारे पास, what you are not supposed to write, you are supposed to start from your essay, you are supposed to start from here directly. ठीक है, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे. You are not supposed to like write any headings, you are not supposed to write anything. Directly the question देखा और आपने शुरू हो जाना उसी के नीचे. You even should not write the question number or anything, because every in the writing part there is a sufficient space given every after the questions. No matter you are in IGCSE, no matter you are in O levels, the sufficient space inside the copy is already given. So no need to write anything as a title or anything like that. ठीक है? So हाँ, if there are choices in IGSE और O level दोनों में choices होती है, तो आपको ये आप लिख सकते हो as a part of a heading. ये कर सकते हो जहाँ choices होती है, ठीक है? बट नो नीड टू राइट दिस, ये वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने टाइटल की हेडिंग डाली, फिर टाइटल के बाद शुड गवर्नमेंट इम्पोज बैन ऑन सिंगल यूज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? डायरेक्टली आप डायरेक्टली आप एज अ हेडिंग ये आप लिख सकते हो, ठीक है? और अगर उस हेडिंग्स के साथ यानी 4 ऑप्शंस आते हैं ओ लेवल्स में, ठीक है, 4 डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं
आउट ऑफ 4 यू आर सपोज टू सेलेक्ट एनी वन, उसमें से 2 आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। और आई मीन 2 आर्ग्यूमेंटेटिव में एक आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, एक वो होता है स्टोरी लाइन स्टोरी बेस होती है, ठीक है, नैरेटिव्स होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका लाइक somewhat you can say descriptive sort of essays, ठीक है। तो बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करना है क्या नहीं वो तो बात की बात है, पहले हमें लिखना तो आना चाहिए कि क्या है। अब जरा सुनो कि फर्स्ट पैराग्राफ आई ऑलवेज हैव टोल्ड यू अबाउट के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन देनी है। अब वो प्लास्टिक बैग के बैन के ऊपर किस तरह इंट्रोडक्शन दे रहा है, हैव अ लुक एट इट प्रॉपर्ली। In recent years, the ubiquitous presence of a single-use plastic, अब भाई ubiquitous presence क्या है, ubiquitous क्या चीज़ है, फौरन ऊपर जाओ और मुझे भी नहीं पता भाई क्या चीज़ है। Present appearing like meaning present, appearing or found everywhere, ubiquitous, that is easy to find, to be found, ठीक है। So ubiquitous presence means the easy presence of a single-use plastic has become a significant environmental concern. Yani the use of the plastic has become quite a significant concern for everyone. Significant, very important concern. From plastic bags to straws, plastic bag, अब still second line में पहले बात तो उसने introduction में क्या कह दिया कि plastic bags, these single use plastic bag has become one of the most important and the crucial part, ठीक है, and it has equally has become the significant environmental concern as well. यानी एक ऐसी चीज, यूबिक्विटस प्रेजेंस का मतलब एक ऐसी चीज जो कि हर जगह पाई जाती है और बहुत अहम जरूरत है, लेकिन साथ ही क्या है भाई कि ये एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न भी बन गया, ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिए, अजान इज गोइंग ऑन, आफ्टर अजान आई विल बी बैक, माय स्क्रीन इज स्टिल बीइंग शेयर्ड, ठीक है, आई एम जस्ट म्यूटिंग फॉर 2 मिनट्स। Okay guys, so let's come back to the topic here. तो इसने first paragraph के बाद, am I unmute? Yes. फर्स्ट पैराग्राफ के बाद उसने क्या बोला कि ये नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट ऑन द अदर हैंड इट हैज बिकम द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न एज वेल। अब सेकंड लाइन पे उसको क्या कह रहा है, अब उसके एग्जांपल दे रहा है, हमने बार बार एग्जांपल की बात की ना, फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स टू स्ट्रॉस दीज आइटम्स आर फाउंड। अब बहुत ज्यादा डीप एग्जांपल भी नहीं देना, देखो उसने बहुत लाइट से एग्जांपल दिए, फ्रॉम प्लास्टिक बैग्स टू स्ट्रॉस these items are found almost everywhere, no doubt, contributing an egregious amount of waste, egregious amount of waste, extreme amounts of waste। क्या कहाँ पर लिखा है भाई egregious, यहाँ पर किधर है, ये रहा, outstandingly bad or shocking, extremely bad or shocking, ठीक है, that means के extremely bad or shocking किधर गया जी,
एग्रिजियस अमाउंट ऑफ वेस्ट, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वेस्ट प्रोड्यूस करता है, दैट पोल्यूट, और वो क्या करता है, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, वो क्या करता है, पोल्यूट्स लैंडफिल्स, ओशंस एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। वाइल्ड लाइफ का जिक्र कभी भी ऐसे इन्वायरमेंटल टॉपिक्स में मत भूलना, ओशंस का जिक्र कभी भी ऐसे इन्वायरमेंटल टॉपिक्स में मत भूलना, बिकॉज दे द कैम्ब्रिज डज नॉट लाइक इट, दे लव इट, ठीक है, दे लव टू लिसन इट। बेशक इंफॉर्मेशन लाइक आगे पीछे हो जाए, वो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाओ वाइल्ड लाइफ के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में, आप ओशंस के बारे में थोड़ा सा एंटार्क्टिक आर्टिक की तरफ चले जाओ, इंफॉर्मेशन डज नॉट मैटर, लेकिन वो सुनना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि यू आर हैविंग अ सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड मरीन लाइफ, यू आर हैविंग अ सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, बस वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं इस चीज को, whenever they give you any sort of environmental topic and it is an environmental topic. While some argue that, अब इसमें क्या होता है, अब आर्ग्यूमेंट की तरफ आ रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में हम सिर्फ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, इस सबको डिटेल्स करेंगे हम सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। अब हमारा एक एग्जांपल आ गया फेवर में, और एक मिक्स एग्जांपल आ गया, आई मीन मैंने दे दिया फेवर में भी दे दिया, उसमें भी दे दिया, अगेंस्ट में भी दे दिया। अब क्या कह रहा है, while some argue that ban on these plastic could have severe economic repercussions, ठीक है, इकोनॉमिक बहुत ही सीवियर किस्म के इकोनॉमिक असरात होंगे इसके, ठीक है, वो क्या है, द ग्रोइंग एविडेंस ऑफ द, अब वो क्या क्या चीज़ है, इसमें से कुछ आर्ग्यू करते हैं, कुछ कहते हैं कि हाँ भाई ये बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कुछ उनमें से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक रिपरकशंस होते हैं। रिपरकशंस मतलब यहाँ पर होता है लाइक रिपरकशंस मीन्स ओवर हियर लाइक बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव असरात। द ग्रोइंग एविडेंस ऑफ देयर एनवायरमेंटल टोल, टोल मीन्स नंबर, ठीक है, द ग्रोइंग एविडेंस ऑफ देयर एनवायरमेंटल टोल मेक्स इट इम्पेरेटिव फॉर गवर्नमेंट टू इम्पोज सच बैन, मीन्स द ग्रोइंग एविडेंस। अब यहाँ पे दोबारा एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इसके नुकसानात ज़्यादा से ज़्यादा होने की वजह से अब गवर्नमेंट मजबूर हो गई है कि इस पे इम्पोज करे बैन, और इम्पोज का वर्ड हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। दिस एसे विल डिस्कस, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस एसे विल डिस्कस, कोशिश करो, मैंने लिख तो दिया यहाँ पर, बट प्लीज यार कोशिश करो कि ये वर्ड ना लिखो कि दिस एसे विल डिस्कस, सो इंस्टेड ऑफ दैट पैसिवाइज दिस, ओके, सो हियर दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड, या some matters related to the environmental issues are going to be discussed, इसको सिनोनिमाइज कर दो, दिस एसे को ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, इट विल नॉट गिव यू, क्योंकि जब हम आइल्स की कैम्ब्रिज की तरफ आते हैं, आइल्स भी कैम्ब्रिज है, और जब हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस की तरफ आते हैं तो ये दिस एसे, इसको डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, डोंट राइट दिस वर्ड, सो दिस पीस ऑफ राइटिंग, ये बोल दो, एसे का वर्ड यूज नहीं करो, या आई का वर्ड यूज नहीं करो, वेल आई विल डिस्कस ये भी यूज नहीं करो, ठीक है, सो दिस पीस ऑफ राइटिंग will discuss both sides of arguments and present reasoned opinion on why ban is essential. That means कि ultimately you are standing to a first paragraph पढ़ने के बाद रीडर को ये पता लगेगा कि भाई ये हमारे ban की तरफ हमारा है, he is in the favor of ban, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हिसाब किताब। सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं, those who opposes a ban on a single use, अब अगेन बैन की बात हो रही है तो बैन को ही हम आगे लेकर चलेंगे कि और सिंगल यूज ऑफन साइट द ऑस्टेंसिबल कन्वीनियंस दे प्रोवाइड इन अ मॉडर्न लाइफ, दोज हु अपोजेस बैन ऑन अ सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑफन साइट द ऑस्टेंसिबल कन्वीनियंस, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है लाइक अनविलिंग, अनदेखा, ठीक है, मानी इतना कि आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल कन्वीनियंस है, यानी प्लास्टिक बैग का कोई एक फायदा नहीं है, प्लास्टिक बैग के कोई हजारों फायदे हैं, प्रोवाइड इन अ मॉडर्न लाइफ, जो कि हमारे मॉडर्न लाइफ में ऑलरेडी हैं। प्लास्टिक्स पहली बात कि अब उसका क्या है, आपने ये जो स्टेटमेंट बोला है कि इसके बेशुमार फायदे हैं, तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल में भी दो, ठीक है, यानी पॉजिटिव रहते हुए दो। प्लास्टिक्स आर चीप टू प्रोड्यूस एंड इजी टू यूज, ये भी बात सही है, मेकिंग देम अ फॉर्मिडेबल
industry and contribute significantly to the like can say economy. ये इतना easy है इसको बनाना और इतना easy है इसको इस्तेमाल करना, but making it formidable. On the other hand, it is making it formidable for the industries. मुसीबत बन रही है industries के लिए, and contributing significantly, जो कि contribute कर रहा है economic global economy पे contribute कर रहा है ये, ठीक है. यानी ये एक हम कहना चाह रहे हैं कि ये एक बड़ी industries है. Additionally, अब उसको हम मजीद अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे. This is why I've used transitional word additionally. Some fear that, अब इसमें opposite, additionally some fear that ban could negatively impact, ठीक है. दोबारा अपनी बात को मैं दोबारा आगे लेकर चल रहा हूं on the other aspect by using the transitional word additionally. मैंने ये कह दिया प्लास्टिक एक बहुत चीपर प्रोडक्ट है, बहुत आसानी से बन जाता है, और एक इंडस्ट्री जो है इसमें ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही, मीन्स कि प्रोड्यूसिंग द plastic bags is significantly increasing the economy of the country. Additionally, some fear that ban could negatively impact industries such as retailer and hospitality, where single-use plastics are cognitive to daily operation. कुछ ये भी समझते हैं कि यार बैन की तो बात करते हो, लेकिन बैन अगर हम लगा देंगे तो ये इंडस्ट्री सफ़र करेंगे. कौन सी इंडस्ट्री? जो कि हमने ऊपर अभी फॉर्मिडेबल इंडस्ट्रीज की बात की है, जो कि कंट्री के इकोनॉमी में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, तो वो लॉस में चली जाएगी. प्लास्टिक्स cognitive to daily operation means where the single use of plastics are cognitive to daily operation, जहां ऐसे इदारे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक यानी जो प्लास्टिक बैग्स जहां यूज हो रहे हैं वो उनका डेली लाइफ है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है. कौन कौन से हो सकता है? फॉर एग्जांपल ये रेडी वाले जितने, ठीक है, सब्जी वाले, इनका तो गुजारा ही नहीं है प्लास्टिक बैग्स के बगैर, ठीक है. सो दैट इज व्हाई ये इंडस्ट्रीज, ये लोग सफ़र करेंगे, और जब डिमांड्स में कमी होगी तो प्रोडक्शन में भी अल्टीमेटली कम करना पड़ेगा आपको, और जब प्रोडक्शन आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको लेबर भी कम लगवानी पड़ेगी. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इट इज लीडिंग टूवर्ड दी अनएम्प्लॉयमेंट. ये भी ऐड कर सकते हो डेली ऑपरेशन के बाद. सही है. However, these arguments fail to acknowledge the inexorable environment consequences to continued plastic consumption. हम जितनी भी बातें इसकी तारीफ में कर लें भाई, ठीक है. अब ये however is an opposite sort of transitional word, जो कि आपको अपनी ही राय का opposite व्यू देने के लिए यूज किया जाता है. however, these arguments जितना भी हम कर लें absolutely fail है to acknowledge the inexorable environmental consequences, like नाकाबिले तलाफी environmental consequences, ठीक है, जो कि यूज होता, जो कि जो consequences हमारे सामने आते हैं because of the consumptions of the plastic, ठीक है. यानी नाकाबिले तलाफी का मतलब, मैं कुछ ज़्यादा ही उर्दू बोल गया, कि नाकाबिले तलाफी का मतलब इसका कोई रिपेयरिंग नहीं हो सकता, ठीक है. यानी इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता कि हम जिस किस्म के जो है प्रॉब्लम्स फेस करेंगे ड्यू टू दीज प्लास्टिक बैग्स. द culpable industries producing these plastics must take responsibility for their role in the crisis and alternative should be sought. अच्छा, एक वर्ड आया गया यहाँ पे, बहुत ही, बाकी सारे वर्ड भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वर्ड क्या है? culpable. ये culprit से वर्ड निकला है. culprit इट्स एन एडजेक्टिव itself और नाउन भी है, लेकिन culpable का मतलब होता है capable, to make someone able to be punished. culprit का मतलब होता है मुजरिम होना, ठीक है. culprit का मतलब होता है कोई बुरे काम का मालिक होना, और ये culpable का मतलब है ऐसा कोई काम जो कि आपको सजा दिला सके. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द culpable. अब यहाँ पे बहुत हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करनी, हम बहुत ही मॉडिफाइड वे में बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में बोलेंगे. अब मुझे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को बुरा बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई? द culpable industries means the industries who are culprits producing these plastic must take responsibility for their role. Definitely उनको अब अपना किरदार अदा करना पड़ेगा इस क्राइसिस के तरफ, and they have to look forward for the alternatives की तरफ जाना पड़ेगा. भाई प्लास्टिक नहीं है तो कुछ और पैदा कर लो, ऐसी कोई चीज़ पैदा कर लो जो डिसॉल्व हो सके, ठीक है.
तो इस पैराग्राफ को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा, लेकिन इसको आप डिसॉल्व होने वाली बात को जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी कर सकते हो। ओके, मीन्स दैट अगर आप इसको डिसॉल्व, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट, द कल्पेबल इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग दीज प्लास्टिक मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रोल इन द क्राइसिस एंड ऑल्टरनेटिव शुड बी सॉट। सो मीन्स नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलोगे मीन्स they can produce any solvable material that can alter plastic bags। कोई solvable material कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सॉल्व नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होता है मिट्टी में, तो ऐसा कोई मटेरियल बना सकें जो कि डिसॉल्व हो सके मिट्टी में। तो ये आप एक एडिशनली पैराग्राफ डाल सकते हो। थर्ड पैराग्राफ जनाब, ऑन द अदर हैंड इज used for another transition, ठीक है, और it is used for adding shocking comments or opposite comments। Advocates for the ban argue that the damage caused by the single plastic is perpetuating cycle of the waste that is unsustainable। On the other hand, advocates for the ban argue, जब हम एडवोकेट करते हैं बैन को, यानी हम सपोर्ट करते हैं प्लास्टिक बैग्स के बैन को, आर्ग्यू दैट डैमेज कॉज्ड बाय द सिंगल प्लास्टिक इज परपीचुएटिंग साइकिल। परपीचुएटिंग साइकिल का मतलब होता है ना खत्म होने वाली बात, यानी हमने जो लाइक ऑन द अदर हैंड our advocates for the ban argue that the damage caused by the single use of plastic is perpetuating cycle of the waste that is unsustainable। ये एक ना खत्म होने वाली वेस्ट की चीज है जो कि काफी अनसस्टेनेबल है इस दुनिया में। मींस आती रहेंगी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी ये ना रुकने वाली कहानी। The global plastic waste crisis is not just a matter of inconvenience। अब ये मजीद इसको आगे बात कर रहा है कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि वेस्ट ये डिसॉल्व नहीं होती है, ज़मीन में डिसॉल्व नहीं होती। इसको वेस्ट अगर हम कर भी देते हैं तो प्लास्टिक ही रहती है, वो कभी गलती सड़ती नहीं है, ठीक है। वो कमज़ोर ज़रूर पड़ सकती है लेकिन प्लास्टिक अपनी जगह हार्मफुल ही रहती है। द ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस is not just a matter of inconvenience। और ये पाकिस्तान में सिर्फ ये मसला नहीं है कि प्लास्टिक वेस्ट को हम ठिकाने नहीं लगा सकते। इट इज़ अ ग्लोबल मैटर, बट मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर मैनी इकोसिस्टम। लेकिन ये साथ ही मैटर ऑफ सर्वाइवल है फॉर मैनी इकोसिस्टम्स के लिए, बहुत से एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट के लिए, बहुत से एनवायरमेंटल टॉपिक्स के लिए। कैसे? The actions of altruistic environmental activities who advocates reducing plastic consumptions has gained momentum in recent years। अब कुछ ड्राइव्स ऐसी चली हैं जो कि by the environmental activist, ठीक है, जो कि एडवोकेट करती हैं कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ द प्लास्टिक बैग। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ गई है, लोगों में शऊर जाग रहा है और लोग जो है इसकी तरफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउ द प्लास्टिक बैग्स आर रियली वेरी बैड, वी शुड नॉट यूज़ इट। नाउ द पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट। और ये कैसे हुआ? थ्रू दीज एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। द साइंटिस्ट एविडेंस इज ओवरवेलमिंग। अब यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस भी एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल को बताकर नहीं दिया कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एज एग्जाम्पल, एज अ पार्ट ऑफ एन एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या? प्लास्टिक पोल्यूशन इज choking marine life, leaching toxin into ecosystem and contributing to climate change। बहुत बड़ी बात बता दी। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है, ये प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है जो कि चोक कर रहा है मरीन लाइफ को। यानी आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा डॉल्फिन या कोई शार्क बहुत से जो है वो थैली में या प्लास्टिक बैग्स में या दूसरे जालों में फंसे रहती हैं, ठीक है, जो कि अक्सर फिशरमैन जो है वो छोड़ जाते हैं, या अक्सर फिशरमैन वो चीज़ें जो खाने पीने के बाद वो समंदर में फेंक देते हैं तो वो उसमें वो फंस जाते हैं, उनके मुंह फंस जाते हैं, उनके विंग्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही से समंदर में ट्रैवल नहीं कर सकते। स्पेशली इट हैपन्स टू टर्टल्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है, आपने कभी देखा होगा, ठीक है।
और ये सारी चीजें क्या कर रही, लीचिंग द टॉक्सिन्स इनटू इकोसिस्टम। आहिस्ता आहिस्ता एक डेंजरस जहर की तरह जो है वो पूरे इकोसिस्टम में फैली। और यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब है समंदर। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज, और ये हमारे क्लाइमेट चेंज का भी सबब बन रहा है। क्लाइमेट चेंज से मुराद कि भाई बेमौसम की बारिश, बेमौसम का तूफान, तो ये एक अलग कहानी, इसकी हम डिटेल नहीं देंगे, बस क्लाइमेट चेंज को यहाँ तक ही समझिए बस। Therefore, the need to act is urgent and cannot be delayed any longer. जाहिर सी बात है, हमने अपने सेकंड थर्ड पैराग्राफ में ये कह दिया भाई कि अब इस पे एक्शन लेना ज़रूरी है, and we should not we should not delay this matter anymore. ठीक है, अब आ रहे हैं सोल्यूशन की तरफ। सेकंड लास्ट पैराग्राफ सोल्यूशन है। थर्ड लास्ट पैराग्राफ मींस द लास्ट पैराग्राफ जो कि इन कंक्लूजन की बात कर रहा है, वो एक सोल्यूशन, इट इज योर ओन पॉइंट ऑफ व्यूज रिलेटेड टू द अबव व्यूज व्हाट एवर यू हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अबव जो कि आप जो बातें, अच्छी बातें और बुरी बातें आप अबव डिस्कस कर चुके हो, और जो अच्छी और बुरी सजेशंस आप देना चाह रहे हो वो सम अप करोगे इन कंक्लूजन। लेकिन जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ये सोल्यूशंस है, लेकिन सोल्यूशन भी आपको बहुत लंबी चौड़ी वाली नहीं देनी। यू कैन सी दैट व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज ऑलरेडी गिवन इन द सेकंड लास्ट पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को वन टाइम यू हैव टू रीड इट आउट, और रीड करने के बाद you have to form one essay. It should not be longer, more than 150 words. ठीक है, you can use many of the vocabularies from here. I will be rather happy to see them. And and in the same unit you are supposed to share this with me. ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, I'm coming toward the classroom here. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। Yes, anybody has any sort of questions? पूछिए। मैंने सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ को छोड़ दिया, इसको तुम अब खुद समझो। जी बेटा बोलो, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जी बेटा बोलिए अगेन। यस, स्पीक अप। सर ऐसे कितने वर्ड्स का? 150 वर्ड्स का बेटा। इट शुड नॉट बी वेरी वेरी लॉन्ग, इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट, but at least you need to make 3 different paragraphs, minimum 3 paragraphs का तो लाजमी लिखो। ठीक है, any other questions my dear students? Please go ahead, unmute your mic directly and ask me. ठीक है, now it is entirely your turn. You have to start producing this, right? And if you need to ask me anything, simply unmute your mic and ask me. I'm already in front of the screen here. Okay?